آغاز میں بات کریں کہ جہلم شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد نشیبی علاقے سیریاب آ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جہلم سے ڈسٹرکٹ رپورٹر چینل 5 نیوز عبدالرحمان قادری سے۔ جی عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جہلم شہر اور اس کے گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ گلیاں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، معاملات زندگی درم برم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق محکمہ موسمیات نے جہلم شہر اور قرب و جوار میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ شہریوں کو دریا، نہروں اور آبی گزرگاہوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور گھروں سے غیر ضروری باہر جانے سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واسا کی جانب سے جہلم کے مختلف علاقوں سے بارش کی مانیٹرنگ ڈیٹا جاری کیا گیا ہے۔ ساحل کالونی میں 80 ملی میٹر، رشید آباد میں 66 ملی میٹر اور سلیمان پارس میں 62 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مظفر گڑھ کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ارکان صوبائی اسمبلی نے جنوبی پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا اور مظفر گڑھ میں الیکٹرو بس اور صاف پانی منصوبہ شروع کرانے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز جنوبی پنجاب سے کر کے شاندار مثال قائم کی ہے، جبکہ ان کی خصوصی توجہ سے پسماندہ علاقوں میں ترقی کا عمل تیز ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ فضل مل سے خانپور بگا شیر، ریلوے پھاٹک سے محمود ملز، جبکہ جھنگ موڑ سے ترکی ہسپتال اور ریلوے پھاٹک تک الیکٹرو بس سروس سے روزانہ ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ چیف منسٹر لوکل روڈ پروگرام کے تحت رابطہ سڑکوں کی تعمیر اور مرمت سے بھی عوام کو سہولت مل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کھوکھلے نعروں اور جھوٹے دعووں کے بجائے عوام کی حقیقی ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس جنوبی پنجاب میں سیلاب کے دوران انہوں نے خود ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی نگرانی کی ہے، جبکہ پسماندہ اور محرومی کا شکار علاقوں کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ بات کریں کہ جہلم میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ شہر کی متعدد گلیاں اور سڑکیں پانی میں ڈوبنے سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ بارش کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق محکمہ موسمیات نے جہلم میں مزید شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے پیش نظر شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریسکیو حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، نشیبی علاقوں اور پانی جمع ہونے والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر ریسکیو سے رابطہ کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرائے عالمگیر میں شدید بارش کے بعد کریالہ کے برساتی نالے میں شدید طوفانی آ گئی، جس کے باعث برساتی پانی آبادی والے علاقوں میں داخل ہو گیا۔ بارشی پانی کھیل کے گراؤنڈ میں بھی جمع ہو گیا ہے، جبکہ مختلف مقامات پر گھروں کی دیواریں گرنے سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ موسلادھار بارش کے باعث علاقے میں صورتحال سنگین ہونے پر مکینوں میں خوف اور تشویش پائی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ برساتی نالوں کی بروقت صفائی نہ ہونے کے باعث بارش کا پانی آبادیوں کا رخ کرتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ برساتی نالوں کی فوری صفائی اور نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کیے جائیں تاکہ مزید بارش کی صورت میں کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ رک کرتے ہیں خانپور کا، جہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات کے حوالے سے میونسپل کمیٹی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں جلوسوں کے روٹ، صفائی اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی قیادت چیف آفیسر مسرت عباس، ایم ایس ڈاکٹر نجیب عالم، مفتی مظہر درانی اور ایس ایچ او سٹی میاں عاصم نے کی، جبکہ مذہبی رہنماؤں، میپکو حکام، شہری نمائندوں اور متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکا نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کے روٹس پر صفائی، تجاوزات اور دیگر مسائل سے انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ انتظامیہ نے جلوس کے روٹس پر صفائی، شہری مسائل کے فوری حل اور بہترین انتظامات کی یقین دہانی کروائی، جبکہ پولیس حکام نے امن و امان برقرار رکھنے اور فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
मजीद भी आपको बताएं कि उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक के ज़ेर सदारत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के मुंतज़मीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जुलूसों के रूट्स, सफाई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया गया। इजलास में जुलूसों के रूट्स की सफाई और क्लियरेंस, सिक्योरिटी इंतजामात और बिजली की तारों के मुनासिब बंदोबस्त समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुंतज़मीन ने अपनी गुजारिशात पेश कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम मुतालिका महकमों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ज़रूरी ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। इनका कहना था कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले इस्लाम के लिए खुशियों का पैगाम है और ये मुकद्दस मौका हमें मोहब्बत, रवादारी और अमन का दर्ज देता है। इजलास में जुलूसों के मुंतज़मीन ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन के अज़म का इजहार किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया जुलूसों के मुंतज़मीन के ताउन से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात को शानदार बनाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें कि वजीर मवासलात और तामीरात पंजाब मलिक सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत मोबाइल एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम के जायजे के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर्स ने शिरकत की। इजलास में सूबाई वजीर को मोबाइल एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम और मोबाइल वेट स्टेशन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के 5 अजला अटक, जेहलम, चकवाल, मुल्तान और झंग में मोबाइल एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम फ़ाल है, जबकि मोबाइल वेट स्टेशन पर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई वजीर के मुताबिक भारी गाड़ियों के एक्सेल लोड की बाकायदगी से जांच का मकसद ओवरलोडिंग के बायस सड़कों को टूट फूट से बचाना है। मोबाइल वेट स्टेशन के जरिए ओवरलोडिंग पर काबू पाने से सड़कों पर हादसात की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। इजलास में मोबाइल वेट स्टेशन पर तैनात अमले की तरबियत के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि सूबाई वजीर ने बताया कि पंजाब के 5 मोबाइल वेट स्टेशन पर मतलूबा आलात और ज़रूरी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। मलिक सुहेब अहमद बट के मुताबिक पंजाब में पहली मरतबा मोबाइल वेट स्टेशन का अमली नफाज किया गया है, जिन्हें ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ शाहराहों पर मुंतकिल किया जा सकेगा। ये स्टेशन उन शाहराहों पर तैनात किए जा रहे हैं जहाँ से भारी ट्रांसपोर्ट पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों तक जाती है। लाहौर ट्रैफिक के हवाले से आपको बताएं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस का वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने 2 नौजवान वन व्हीलर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि DSP ट्रैफिक टाउनशिप फयाज भट्टी की सरबराही में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 2 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक DSP ने खुद मोटरसाइकिल पर वन व्हीलर्स का पीछा करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया, जबकि इनके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान में मुजीब और अब्दुल्ला शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के मोबाइल फोन्स और वन व्हीलिंग, रोड रेज और हुल्लड़बाजी की मुतादिद वीडियोस भी बरामद कर ली गई। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शिराजी का कहना है कि वन व्हीलिंग, तेज रफ्तारी और ओवर स्पीडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने वालिदैन से भी अपील की है कि वो नौजवानों को वन व्हीलिंग जैसे खतरनाक शौक से दूर रखें, ताकि कीमती जानों को हादसा से महफूज रखा जा सके। दूसरी जानब पंजाब पुलिस के खदमत मराकज़ शहरियों को डिजिटल और अवामी सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़ अमल है। रवा साल अब तक 30,38,000 से ज़ायद शहरी खदमत मराकज़ के मुख्तलिफ सर्विसेज हासिल कर चुके हैं। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 11,14,000 से ज़ायद शहरियों ने जर्नल पुलिस वेरिफिकेशन, जबकि 5,62,000 से ज़ायद शहरियों ने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल किए। 8,11,000 से ज़ायद शहरियों ने किरायादारी इंदराज भी करवाया है, जबकि 1,20,000 से ज़ायद शहरियों को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट फराहम किए गए हैं। कमज़ोर तबकात के लिए जारी इक़दामात के तहत 72,000 से ज़ायद अफराद को कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। पुलिस के मुताबिक 21,597 शहरियों ने व्हीकल्स वेरिफिकेशन, 61,809 ने दस्तावेज़ात की गुमशुदगी का इंदराज, जबकि 2,247 शहरियों ने जुराइम की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 1,73,000 से ज़ायद शहरियों ने FIA की नकुल हासिल की। 54 विमेन वायलेंस रिपोर्ट्स दर्ज हुई, जबकि 94,000 से ज़ायद शहरियों ने एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन यानी रोक करवाए। तर्जुमान के मुताबिक 2,371 शहरियों ने निजी मुलाजमत के लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाई। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना है कि पुलिस खिदमत मराकज़ पब्लिक सर्विस डिलीवरी का शानदार फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जहाँ शहरियों को
24 घंटे सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने पुलिस खिदमत मराकज़, थानों और पब्लिक मकामात पर शहरियों के साथ शाइस्ता रवैया इख्तियार करने की भी हिदायत की है। और अब बात करें कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से महंगाई भी रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। घी, दाल, आटा और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में सामना हो गया है। दूसरी जानिब लाहौर में रात गए 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में तेज़ रफ्तार डंपर्स ने ट्रैक्टर ट्रॉली और कार को टक्कर मार दी। दोनों हादसात में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार सवार मामूली जख्मी हुए हैं, जबकि दोनों डंपर्स के ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं। अचरा बाजार में तेज रफ्तार डंपर ने रेत से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है और ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया है। दूसरे वाक़ये में मजंग के इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी और ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने दोनों डंपर्स को कब्जे में लेकर थाना अचरा पुलिस के हवाले कर दिया है। CTO लाहौर ने दोनों डंपर ड्राइवर्स और मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। उनका कहना है कि दोनों ड्राइवर्स के लाइसेंस भी मंसूख किए जाएंगे। CTO लाहौर के मुताबिक गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार ड्राइवर्स और मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घोटकी से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पानी की किल्लत के खिलाफ फकीर माइनर नहर के आबादकारों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है, जबकि आबादकारों ने सीधा डायरेक्टर ऑफिस में मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फकीर माइनर नहर में ज़रूरी पानी की फौरी फरहमी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि नहर में पानी की अदम फरहमी के बायस इनकी फसलें मुतासर हो रही हैं, जबकि मुसलसल तीसरे रोज एहतजाज के बावजूद पानी की किल्लत का मसला हल नहीं हो सका। आबादकारों ने मुतालबा किया है कि फकीर माइनर नहर में फौरी तौर पर ज़रूरी पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए और पानी की किल्लत का मुस्तकिल हल निकाला जाए। अब बात करेंगे महकमा रेलवे की जानिब से दादू रेलवे स्टेशन पर वाक़े 12 दुकानों की ओपन नीलामी का इनेकाद किया गया, जिसका अमल पाकिस्तान रेलवे की डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी उस्मा, डायरेक्टर विजिलेंस मोहम्मद शान और सेक्शन DM3 आसिफ मुमताज़ की निगरानी में मुकम्मल हुआ। नीलामी के दौरान एक दुकान की सरकारी बोली 1,40,000 रुपए से शुरू हुई, जबकि 12 दुकानों की मजमूई कामयाब बोली 18,60,000 रुपए तक पहुँच गई। कामयाब बोली दहनगान में शहजाद भंड, अब्दुल मन्नान, हबदार, खादिम हुसैन, अली नवाज, मुकद्दस अली और असमत अली समेत दीगर शामिल हैं। कामयाब बोली दहनगान को दादू रेलवे स्टेशन के सेक्शन ब्लॉक A और B में दुकानें अलॉट की जाएंगी। महकमा रेलवे के मुताबिक कामयाब बोली दहनगान को तयशुदा बोली के मुताबिक सालाना किराया अदा करना होगा, जबकि अलॉट की गई दुकानों की जगह पर मुकर्ररा कवायद और ज़वाबित के तहत तामीरात की इजाज़त भी होगी। इससे कबल महकमा रेलवे दादू की जानिब से 8 दुकानों की कामयाब नीलामी 19,58,000 रुपए में की गई थी। हालिया 12 दुकानों की नीलामी के बाद दादू रेलवे स्टेशन की मजमूई 20 दुकानों की प्रॉपर्टी 38,18,000 रुपए में नीलाम हो चुकी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जैकबाबाद पुलिस की रूपोश, इश्तिहारी और मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी समेत जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 5 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि 2 छीनी गई मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1000 ग्राम ड्रग्स बरामद की है। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के कब्जे से 900 ग्राम मुसरे सेहत गुटखा बरामद कर लिया। SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर शाहजान लाशारी और पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना सिटी के एक मुकदमे में मतलूब मुलजिम गुलाम अब्बास सुमरो को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि थाना सिटी पुलिस ने मजीद कार्रवाइयों में काशिफ अली वल्द जावेद एथियम और वसीम अहमद वल्द बाबू कमरुद्दीन अब्बासी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वसीम अहमद के कब्जे से 1000 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। हैस्को की जानिब से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कुंडा माफिया और बिल ना दहनदान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ रिजवान शेख हैस्को की टीम के हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी रिजवान, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पर जो है हैस्को की टीम मौजूद है और गैर कानूनी कुंडा माफिया और बिल नादहनदान के खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई जारी है। हमारे साथ यहाँ पर LS अल्लामा इकबाल मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं सर किस किस्म की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ुल्लाह साहब के और
عقیل نور صاحب کے ہدایت کے اوپر ہم یہ جو کنڈا مافیا کے خلاف ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں، جس کے کہنے کے اوپر یہ متحد یہاں پہ ہم نے کافی ساری تاریں کاٹی ہیں اور نمائندگان تھے ان کی بھی ہم نے تاریں کاٹی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ان کے کہنے سے جو بھی یہاں پہ ہماری جو چوری ہے اس کو ختم کیا جائے، کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہماری ریکوری بھی بہتر کی جائے۔ یہ ہے کہ یہاں پہ چوری تو بہت زیادہ ہے مگر کہ کنٹرول کرتے کرتے ہم انشاءاللہ اس پہ ہم کنٹرول کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہیسکو چیف فیض اللہ ڈہری کی ہدایت ہے کہ بل نادہندگان اور بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف یہ مہم جب تک جاری رہے گی اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر جو ہے غیر قانونی کنیکشن بھی کاٹے گئے ہیں اور آئندہ بھی ان کا یہی لائحہ عمل ہے کہ غیر قانونی کنیکشن لگانے والوں کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شکریہ اپڈیٹ دینے کے لیے۔ دوسری جانب بات کریں، آپ کو بتائیں وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت مثالی گاؤں پروگرام اور دیہی علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری بلدیات سید بن مقصود اور اسپیشل سیکریٹری شاہد زمان لک نے شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کے سی ای او خرم پرویز نے مثالی گاؤں پروگرام پر بریفنگ دی ہے۔ لاہور ڈویژن کے دیہات میں پروگرام کی 46% پیش رفت پر صوبائی وزیر نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور پی آر ایم ایس سی کو منصوبے کی مقررہ ٹائم لائن پر ہر صورت عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سوہنا پنجاب ویژن کے تحت دیہات کو مثالی بنایا جا رہا ہے، جبکہ نئے مالی سال کے بجٹ میں مزید فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ معیاری بنیادی سہولتوں کی دستیابی دیہی آبادی کا حق ہے اور مثالی گاؤں پروگرام کا دائرہ کار بتدریج وسیع کیا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب رورل سینیٹیشن ایبل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کے مطابق پی آر ایس ڈبلیو ایس ایس پی 16 تحصیلوں کے دیہات میں شروع کیا گیا ہے، جس سے 60 لاکھ افراد کو صاف پانی اور سینیٹیشن کی سہولت میسر آئے گی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ منصوبے کا پائلٹ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہر اولیاء ملتان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت سیکریٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین منگل نے کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈی جی ایم ڈی اے عطاء الحق کھوکر نے ایم ڈی اے کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نے ملتان کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانے اور غیر منظور شدہ تعمیرات کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ نور الامین مینگن نے شہر کی سڑکوں، فٹ پاتھ اور گرین بیلٹس کی بحالی پر خصوصی توجہ دینے، جبکہ جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مزید بھی آپ کو بتائیں کہ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حلقے میں نشتر پارک کے اسکول آف ایمننس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تعلیمی سہولیات، لیبارٹریز اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر وزیر تعلیم نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حلقے میں مزید 6 اسکول آف ایمننس اور 2 دانش اسکول شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رانا سکندر حیات نے امیر جماعت اسلامی کو اسکول آف ایمننس کے تعلیمی ماڈل، معیار اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لینے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ پنجاب کے کسی ایک اسکول آف ایمننس کا مقابلہ اپنے کسی بھی تعلیمی ادارے سے کر کے دکھائیں۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کے بچے جدید روبوٹکس ماڈلز تیار کر رہے ہیں، جبکہ اسکول آف ایمننس کی لیبارٹریز اور انفراسٹرکچر کسی نجی ادارے سے کم نہیں۔ ان کا کہنا کہ گزشتہ 71 سال سے تعلیمی نظام میں مختلف تجربات کیے جاتے رہے، لیکن مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر اب اصلاحات کی ضرورت پیش آئی ہے۔ حکومت ٹیکس کے پیسہ دانش مندی سے استعمال کرتے ہوئے معیاری اور مفت تعلیم فراہم کر رہی ہے، جبکہ رانا سکندر حیات نے کہا کہ اسکول آف ایمننس کے بعد نجی اسکول بھی اس ماڈل اور انفراسٹرکچر کو فالو کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے مطابق اسکول آف ایمننس ہر بچے کا حق تھا جو حکومت فراہم کر رہی ہے۔ رک کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں لین دین کے تنازع پر شہری کو چارپائی سے باندھ کر تشدد کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان حارث اور اسامہ نے شہباز نامی شہری کو چارپائی سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور واقعے کی ویڈیو بھی بنائی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی امام کانچن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ڈی پی او ننکانہ صاحب ارسلان زاہد کی ہدایت پر تھانہ صدر ننکانہ صاحب پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف
कार्रवाई करते हुए सरगर्म चोर गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना इमरान उर्फ मानी जबकि शफीक और अमजद शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से चोरी की 5 वारदातों का सुराग लगा लिया गया, जबकि मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। DPO ननकाना साहब अरसलान जाहिर का कहना है कि जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रखी जाएंगी और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानब घोटकी में सरहद के करीब होटल पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में मुबैना जाली शराब बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक DIB इंचार्ज की सरबराही में पुलिस टीम ने होटल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मुबैना जाली शराब के साथ उसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान और केमिकल भी तहवील में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुबैना जाली शराब इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पुलिस के मुताबिक सरहद और गिरदोनवा में मुबैना तौर पर काफ़ी अरसे से जाली शराब की तैयारी और कारोबार जारी था। पुलिस ने कार्रवाई के बाद मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि जाली शराब के कारोबार के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ का भी इम्कान है। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। बताएं घोटकी के इलाके कच्चू बंडी के गांव मलूक शेख में मुबैना सियाहकारी के इल्जाम पर फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक खानदर शेख ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया मसमात मलुकान शेख और नौजवान नूर हसन शेख को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया है। कच्चू बंडी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशें तहवील में ले ली हैं और तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मकतूल नूर हसन शेख की अहलिया मसमात पोपरी ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके शौहर को बेगुनाह कत्ल किया गया है। इनका कहना है कि खानदर शेख और इमाम बख्श ने कमंद की फसल में इनके शौहर को कत्ल किया, जबकि मसमात ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वाक़े के बावजूद पुलिस ताहाल जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मुल्क भर की तरह में बढ़ती हुई महंगाई ने मोबाइल फोन्स को भी लपेट में ले लिया है। डॉलर्स की ऊंची परवास और हुकूमती टैक्सेस में इजाफे के बायस उकाड़ा शहर की मोबाइल मार्केट में भी कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं औकात से हमारे नुमाइंदे राना आसिफ जब्बार से। जी आसिफ बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया महंगाई की वजह से मोबाइल फोन्स की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। मोबाइल फोन्स की कीमतों में 20 से 30% इजाफा हो गया है। 25,000 में आने वाला मोबाइल अब 40,000 की कीमत में मार्केट में मिल रहा है। इस वजह से शहरी काफी परेशान है। ये महंगाई का वक्त है। जो 25,000 वाली डिवाइस थी वो 40 की, जो 45,000 वाला फोन था वो 70,000 से ऊपर चला गया, यानी कि कुव्वत खरीद से बाहर हर चीज हो चुकी है। ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम मोबाइल एसोसिएशन जिस तरह सुनारों का हाल किया इन्होंने कि हर चीज रोज बढ़ती सोना 6 लाख से 4.5 लाख रुपए आया है, तो काम नहीं है कि अगर हुकूमत चाहे तो ये चीजें बैग लेके आए, टैक्स कम करे और इनके खजाने में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। दूसरा जो रेट रोज बढ़ रहे हैं, इनको पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए। जो ताजर है वो मशीयत रीढ़ की हड्डी रखते हैं, इन्होंने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, लोग मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जी, जैसा कि आपने जाना कि इन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे की वजह से लोग पहले परेशान थे, अब मौजूदा मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से बाजार में सन्नाटा हो चुका है, गाहक ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से अपील की है मोबाइल फोन की हालिया कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए ताकि शहरी सुकून का सांस ले सकें। जी और अब आपको बताएं कसूर के इलाके कोट राधा किशन में मामूली तन गुलामी पर मुबैना तौर पर ओबाश नौजवान की सरेआम हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि वाक़या महल्ला जजवाला में पेश आया, जहां वीडियो में मुबैना मुलजिम को सरेआम हवाई फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग के बायस इलाके में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों के मुताबिक हवाई फायरिंग से मना करने पर मुबैना मुलजिम ने एक बुजुर्ग शहरी को कत्ल की धमकियां भी दी हैं। इलाका वकीलों ने आला हुक्काम और IG पंजाब से वाक़े का फौरी नोटिस लेने, हवाई फायरिंग में मुलव्विस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया।
और अब रुक करते हैं कनकोट का, जहां गांव हैबत खान बाजकानी के TCF प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की वजह से स्कूल बंद करने के खिलाफ 300 से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया है। तुलबा और तालबात सरापा एहतजाज बन चुके हैं। इसी वजह से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श बताएगा। ताला न खपिन तालीम खपे। आज हम उस इलाके में मौजूद हैं, गांव हैबत खान बाजकानी में, जो कि PPL गैस इंतज़ामिया की जानिब से TCF स्कूल जो कायम किया गया था। बरसों से इस स्कूल की लापरवाही और गफलत के बायस 300 से ज़ायद बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में है, क्योंकि आज बच्चे सरापा एहतजाज हैं। मगर इस स्कूल को इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता 14 रोज़ से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इलाके की जो बच्चे हैं वो तालीम से महरूम हो रहे हैं। एक ज़िले कश्मीर कंदकोट में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंदकोट गैस फील्ड ने स्कूल तामीर करवाया आज से 15 साल पहले, लेकिन पिछले 2 सालों से मुसलसल TCF इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम रही है। हमने बार बार ये ऊपर बताई है बात कि भाई ये इनमें तालीम नहीं है और फेडरल बोर्ड है। क्लास 9 के सारे बच्चे फेल हो गए। एजुकेशन का मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। टेक्निकल स्टाफ इनके पास है नहीं जो फेडरल बोर्ड इनको पढ़ा सके। इन्होंने भी मुतालबा किया है कि इस सारे मामले के लिए एक तहकीकाती टीम मुकर्रर की जाए और उसके अलावा इस इदारे को जो है कि IBA के हवाले किया जाए, ताकि ये जो मासूम बच्चे हैं ये तालीम का बेहतर जेवर हासिल कर सकें। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और पेट्रोलियम लीवर खत्म करने का मुतालबा लिए जमात इस्लामी का चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर धरना 4थे रोज़ में दाखिल हो चुका है। जमात इस्लामी ने उसे 8 रोज़ तक जारी रखने की तैयारी की है। कराची और दीगर सूबे गवर्नर हाउसेस के बाहर भी एहतजाजी धरने जारी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मियाँ असद से। जी असद बताएगा। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त माल रोड पे। मालवा है कि लेवी टैक्स को ख़त्म किया जाए और पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मदद जलानी जो कि रहनुमा है जमात इस्लामी की, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब बताइएगा कि जो एक मुतालबा है जमात इस्लामी का कि लेवी टैक्स ख़त्म करो और पेट्रोल कीमत कम करो, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल रोड के ऊपर चेयरिंग क्रॉस पे एक अजीमुशान धरना दिए बैठी है और ये धरना सिर्फ पंजाब की सतह पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यही धरना कराची के अंदर गवर्नर हाउस के बाहर भी है, यही धरना कोयटा में गवर्नर हाउस के बाहर भी है और यही धरना पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर भी है। जमात इस्लामी का एक ही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हुकूमत वक्त जो है ना वो लेवी टैक्स का खात्मा करे। जो 116 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से लेवी टैक्स लिया जा रहा है वो ख़त्म करे। हुक्मरानों के यहाँ ये बात चल रही है कि इंटरनेशनल सतह पे जो जंग के असरात हैं उसकी बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। हमारा ये मुतालबा ही नहीं है कि मंडी में कीमत का ज़्यादा होना या कम होना, वो एक अलग चीज़ है। जो लोकल सतह पे बदमाशी टैक्स है, लेवी टैक्स है, जग्गा टैक्स है, उसके लिए जमात इस्लामी का मुतालबा है कि जो आप 116 रुपये फ़ी लीटर टैक्स वसूल कर रहे हैं उसका खात्मा किया जाए तो कीमत कम हो जाएगी। जी जिस तरह रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज़ मदद जलानी साहब की अपने बात सुनी, इनका ये कहना था कि लेवी जो पेट्रोल टैक्स की मद में एक भत्ता वसूल किया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए कि पर लीटर के हिसाब से इसको कम किया जाए, क्योंकि जब पेट्रोल सस्ता होगा और अशिया खुर्द और नोट सस्ती होगी तो माशियत का जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाएगा। जी। और यहाँ आपको बताएं खैरपुर की टाउन कमेटी सिटारा के वार्ड नंबर 11 से फंक्शनल लीग के काउंसलर समर अब्बास बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टाउन चेयरमैन कामरान अब्बास पर वार्ड में तरक्याती काम ना कराने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। जबकि काउंसलर समर अब्बास बलोच का कहना है कि वार्ड नंबर 11 को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है और 8 माह गुजरने के बावजूद वादे के मुताबिक तरक्याती काम शुरू नहीं किए गए। इनका कहना था कि तरक्याती कामों के हवाले से वो पहले भी एहतजाज कर चुके हैं और एंटी करप्शन में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, ताहम इन्हें मुसलसल यकीन दहानियों और आसरों में रखा गया। समर अब्बास बलोच ने कहा कि अब मजीद खामोश नहीं रहेंगे और अपने जायज़ हुकूक हासिल करना बखूबी जानते हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि वार्ड नंबर 11 में फौरी तौर पर तरक्याती काम शुरू किए जाएं। काउंसलर ने खबरदार किया कि 1 हफ्ते के अंदर तरक्याती काम शुरू ना किए गए तो तमाम सियासी जमातों से राब्ता करके इज्तिमाई मुहिम चलाई जाएगी, जबकि टाउन कमेटी ऑफिस के सामने टाउन चेयरमैन के खिलाफ बड़ा धरना भी दिया जाएगा।
यहाँ आपको बताएं कि सजावल के नवाही गांव फकीर मोहम्मद भट्टी में एक ही खानदान के 4 अफराद एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं। बीमारी के बायस मुतासर अफराद के पाँव की जिल्द बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। ताहम कई अरसे गुजरने के बावजूद मर्ज की तशखीस नहीं हो सकी। मुतासर अफराद में 27 साला हबीबुल्ला, जबकि 23 साला मेहरुन्निसा, 15 साला नसीबुल्ला और 12 साला खैरुन्निसा शामिल हैं। खानदान के मुताबिक बीमारी बढ़ने के साथ मुतासर अफराद की तकलीफ में भी इजाफा हो रहा है, मगर मर्ज की असल वजह ताहा सामने नहीं आ सकी। मुतासरा खानदान महदूद माली वसाइल के बायस इलाज और ज़रूरी तिब्बी टेस्ट कराने से भी कासिर हैं। वालिदैन अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर शदीद परेशानी का शिकार है, मगर खानदान ने हुकूमत सिंध, महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि माहिर डॉक्टरों की टीम फौरी तौर पर गाँव भेजी जाए। घोटकी में काजीबा से लाखों रुपए मालियत की सरकारी लकड़ी चोरी करके काटने की कोशिश नाकाम बनाते हुए पुलिस ने कार्रवाई करके सरकारी लकड़ी बरामद कर ली है। डीआईबी इंचार्ज असगर जसकानी की क़यादत में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसके दौरान लाखों रुपए मालियत की सरकारी लकड़ी तहवील में ले ली गई है। और अब आपको बताएं, कसूर में थाना सदर पुलिस ने 15 पर डकैती की झूठी कॉल करने वाले दूध फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि पुलिस के मुताबिक सदर दीवान रोड के रिहायशी उस्मान ने दोलेवाला के करीब एक राहगीर के मोबाइल फ़ोन से 15 पर कॉल करके इतला दी कि इससे 3,25,000 रुपये छीन लिए गए। इतला मिलते ही थाना सदर कसूर पुलिस SHO मोहम्मद इशफाक की सरबराही में फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और कॉलर से पूछताछ शुरू की गई। और बात करें कि ओकाड़ा में माह रबी अव्वल के मौके पर सूटा पंजाब एजेंसी का खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक और MD चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की हिदायत पर मसाजिद, गली महल्लों, शाहराहों और अवामी मकामात की सफाई यकीनी बनाई जा रही है। साकुर प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद रिजवान जफर और तहसील मैनेजर नौमान राशिद की ज़ेर निगरानी सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान नाक़िस और ममनू अशिया की बड़ी मिक़दार तलब कर दी गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की सरबराही में इंडस्ट्रियल एस्टेट, जना टाउन और फैडमिक में 6 फूड पॉइंट्स पर छापे मारे गए, जिनमें से 3 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि नाक़िस खुराक फरोख्त करने वालों को मजमूई तौर पर 45 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में कचहरी बाजार को व्हीकल फ्री जोन बनाने के बाद पैदल राहगीरों को तो सहूलत मैसर आई, लेकिन बाद शहरियों की जानिब से मोटरसाइकिलें मुल्का गलियों में खड़ी किए जाने से नई मुश्किलात जन्म ले रही हैं। पार्किंग की सहूलत मौजूद होने के बावजूद शहरी मुकर्ररा मकामात के बजाय गलियों का रुख क्यों करते हैं और इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, देखते हैं आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। फैसलाबाद के कचहरी बाजार में ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के बाद बाजार को व्हीकल फ्री जोन बनाया गया है, ताकि शहरी पुरसुकून और खुशगवार माहौल में खरीदारी कर सकें। बाजार के अंदर मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों के बेहंगम रश के खात्मे से पैदल चलने वालों के लिए कुशादा रास्ते मैसर आए हैं। ताहम बाजार से मुंतकिल होने वाली ट्रैफिक का दबाव अब मुल्हका गलियों में बढ़ रहा है, जहाँ बाज़ शहरी अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं। कचहरी बाजार जो ब्यूटिफिकेशन किया ये तो अच्छा है, लेकिन जो व्हीकल्स की वजह से बंद किया, सारा जो बर्डन है वो साइड वाली गलियों पे चला गया है। दुकानदार काफ़ी परेशान रहते हैं। आम क्लाइंट, आम कस्टमर जब आता है खवातीन के साथ तो काफ़ी परेशानी बनती है उसको। कचहरी बाजार में बड़ा पार्किंग स्टैंड मौजूद है, जबकि मेन रोड पर भी जिले इंतजामिया की जानिब से पार्किंग की इजाज़त दी गई है, जहाँ पार्किंग कंपनी का अमला ड्यूटी पर मामूर होता है। लेकिन इसके बावजूद बाद शहरी मुकर्ररा पार्किंग इस्तेमाल करने की बजाय गलियों का रुख करते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक कुछ शहरी पार्किंग फीस बचाने या अपनी सहूलत की खातिर ऐसा करते हैं। शहरी चंद पैसे बचाने की खातिर पार्किंग की बजाय गलियों में मोटरसाइकिलें वगैरह खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से पैदल गुजरने वालों को बहुत मुश्किलात होती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आसानी के साथ लोगों का गुजरगा हो सके। गलियों में खड़ी की जाने वाली मोटरसाइकिलें सिक्योरिटी खदशात का सबब भी बन रही हैं। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जिसके बाद मुकर्ररा पार्किंग की अहमियत मजीद बढ़ गई है। कचहरी बाजार को व्हीकल फ्री करार दिए जाने के बाद मुल्हका गलियों में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से
पैदल राहगुजारों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने मुतलका अदारों से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। कोटा 2 में सेफ सिटी मंसूबा फाल हो गया। शहर में नस्ब तमाम कैमरे चालू करके ट्रैफिक की निगरानी और ई चालान का निज़ाम शुरू कर दिया गया है। सेफ सिटी मंसूबे के तहत अहम मकामात, शाहराहों और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी की जा रही है। जदीद कैमरों के जरिए ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदही और रिकॉर्डिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जबकि हुक्काम के मुताबिक ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ई चालान जारी किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सुत्रा से ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान के नुमाइंदगान ने मुलाकात की है, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर से मुतालिक पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वक्त ने टैक्स रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स से मुतालिक दीगर मसाइल से चेयरमैन PRA को आगाह किया है, जबकि टैक्स निज़ाम को मज़ीद आसान और कारोबारी तबके के लिए सहल बनाने के हवाले से तजावीज़ भी पेश की गई हैं। मौसम इकबाल सुप्रिया का कहना था कि कारोबारी बरादरी और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान बाहमी राब्ता टैक्स निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में ड्राइविंग में मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस 3 साला बच्ची जाँ बहक हो गई है। पुलिस ने हादसे में मुलव्वस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हादसा सिटी स्कूल के करीब पेश आया, जहां कार सवार के मुबैना गफलत के बायस 3 साला मशल गाड़ी की सद में आ गई। हादसे के बाद बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। और यहाँ आपको बताएं, खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जबकि मेहमान खुसूसी अल शिफा ट्रस्ट के जनरल मैनेजर सफ़ीर ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया है। इस मौके पर डॉक्टर अली रज़ा लाशारी ने कहा कि दरख्त माहौल को साफ रखने के साथ आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। इन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने के साथ लगाए गए पौधों की हिफाजत भी यकीनी बनाए, जबकि जनरल मैनेजर अल शिफा ट्रस्ट सफ़ीर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।